हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है आरआरबी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए। आरआरबी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम का लिए जो लोग तैयारी कर रहे हो उन लोगों के लिए वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन कवर किया। इससे पहले भी मैंने आरआरबी स्टाफ नर्स का वीडियो अपलोड किया। अगर वो वीडियो आप लोगों को देखना है तो यू कैन गो एंड विजिट माई चैनल। बहुत सारे वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। हर एक दिन दूसरा टॉपिक से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गो फॉर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मैनेजमेंट प्रिंसिपल emphasizes that an employee should receive order from only one superior? Option A, division of work. Option B, unity of command. Option C, equity. And final option, scalar chain. The correct answer is option B. Option B, unity of command is the correct answer. Second question. Which of the following is the most common source of medication error in hospitals? Option A, poor handwriting in prescription. Option B, patient age. Option C, hospital size. And final option is D, patient education. The correct answer is option A. Option A, poor handwriting in prescription is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला? Which of the following is the most common source of medication error? मेडिकेशन error क्या होता, क्यों होता है हॉस्पिटल में? अगर मेडिसिन का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है इसलिए होता है। ओके, पेशेंट एज के साथ कोई लेना देना नहीं है, हॉस्पिटल साइज के ऊपर भी कोई लेना देना नहीं है, पेशेंट एजुकेशन के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये तीनों नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज पोर हैंड राइटिंग इन प्रिस्क्रिप्शन। व्हिच कमिटी इन्वेस्टिगेशन एडवर्स इवेंट्स एंड सैनिटेशन इवेंट्स इन ए हॉस्पिटल? ऑप्शन ए, परचेज कमिटी. ऑप्शन बी, क्वालिटी एश्योरेंस कमिटी. एंड फाइनल ऑप्शन, रिक्रिएशन कमिटी. लास्ट ऑप्शन इज डायट्री कमिटी. The correct answer is option B. Option B, Quality Assurance Committee. The abbreviation NABH stands for option A, National Association of Blood Hospital. Option B, National Accreditation Board of Hospital and Healthcare Providers. Option C, National Authority of Basic Health. And final option, National Board of Hospital Hygiene. The correct answer is option B. Option B, National Accreditation Board of Hospital and Healthcare Providers is the correct answer. NABH stand for National Accreditation Board of Hospitals and Healthcare Providers. Okay, so next question. Which indicator is used to measure bed utilization? Option A, bed occupancy rate. Option B, death rate. Option C, birth rate. And final option is D, infection rate. The correct answer is option A. ऑप्शन ए, बेड ऑक्यूपेंसी रेट इज़ द करेक्ट आंसर। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बहुत हेल्पफुल होगा ये नर्सिंग क्विज चैनल आप लोगों के लिए। रूट कॉज एनालिसिस इज मेनली यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए, स्टाफ रिक्वायरमेंट. ऑप्शन बी, आइडेंटिफाइंग कॉज ऑफ सीरियस इंसिडेंट. ऑप्शन सी, सैलरी कैलकुलेशन. एंड फाइनल ऑप्शन इज डी, ड्रग प्रोस्क्रिवेंट. The correct answer is option B. Option B, identifying of serious incidents is the correct answer. रूट कॉज एनालिसिस मेनली यूज़ होता है आइडेंटिफाई कॉज सीरियस इंसिडेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, अगर आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है यू कैन गो एंड फॉलो माई पेज, सब्सक्राइब नर्सिंग क्विज पेज इन फेसबुक. Which document provides evidence that informed consent has been obtained? Option A, duty roster. Option B, consent form. Option C, incident report. And final option is D, admission register. The correct answer is option B. Option B, consent form is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला? कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड एविडेंस दैट इन्फॉर्म कॉन्सेंट हैज़ बीन ऑब्टेंड? ये होता है कॉन्सेंट फॉर्म. ओके, कॉन्सेंट फॉर्म इज द करेक्ट आंसर. द पर्पस ऑफ ट्रायज ड्यूरिंग A diaster is to option A, register patients. Option B, prioritize treatment according to severity. Option C, prepare discharge summary. And final option is D, arrange transport. The correct answer is option B. Option B, prioritize treatment according to severity is the correct answer. Which sterilization method is most suitable for heat sensitive
इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी ड्राई हीट, ऑप्शन सी इथालीन ऑक्साइड गैस, एंड फाइनल ऑप्शन बॉयलिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इथालीन ऑक्साइड गैस इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनको जरूर भेजना, बहुत हेल्पफुल होगा उनका। अगर फेसबुक पेज में फॉलो करो फॉर डेली प्रैक्टिस। ओके, डेली 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अपलोड किया। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज ऑप्शन ए डेली एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी रूटीन कैथेटर चेंज, ऑप्शन सी हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक कैथेटर इंसर्टेशन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी increased IV fluids. The correct answer is option C hand hygiene and aseptic catheter insertion is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला था, मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंट कॉटी मीन्स क्या है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, हैंड हाइजीन करना है, और एसेप्टिक मतलब कैथेटर इंसर्टेशन के लिए एसेप्टिक यूज़ करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड क्लासिफाइज आइटम बेस्ड ऑन एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। ऑप्शन बी FIFO, ऑप्शन बी ABC एनालिसिस, ऑप्शन सी LIFO, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी गांट चार्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ABC एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या बोला, व्हिच इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड क्लासिफाइज आइटम बेस्ड एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। और एनुअल कंजम्पशन वैल्यू किसके एनालिसिस के थ्रू होता है, ABC एनालिसिस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A nurse manager resolving conflict through a win-win approach is using option A avoidance, option B collaboration, option C competition, and final option is D accommodation. The correct answer is option B collaboration is the correct answer. Next question, which of the following is a hospital acquired infection? Option A malaria on admission, option B pneumonia developing 72 hours after admission, option C typhoid before admission, and final option chickenpox at home. The correct answer is option B pneumonia developing 72 hours after admission is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला, which of the following is a hospital acquired infection, मतलब यहाँ पे कौन सा है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। मैलेरिया ऑन एडमिशन के टाइम मैलेरिया हुआ तो बाहर से आया, ठीक है, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड नहीं है। टाइफाइड बिफोर एडमिशन के पहले ही अगर कोई पेशेंट को टाइफाइड हुआ वो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं है। चिकन पॉक्स एट होम, अगर घर में चिकन पॉक्स हुआ वो भी नहीं है। लेकिन अगर न्यूमोनिया हुआ 72 आवर्स बाद में, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। ठीक है, हॉस्पिटल आने के बाद उसका न्यूमोनिया हुआ, मतलब क्या है, वो मेडिकल फील्ड रिलेटेड जितना सारे मेंबर्स है उसका थ्रू हुआ, इसको कहता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मैनेजमेंट फंक्शन फॉलोज प्लानिंग। ऑप्शन ए कंट्रोलिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी डायरेक्टिंग, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी इवैल्यूएशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन फॉलोज प्लानिंग फॉलो करता है, ऑर्गेनाइजिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बहुत बार रिपीट भी हुआ। व्हिच इज़ द बेस्ट मेथड टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन ए अटेंडेंस रिकॉर्ड, ऑप्शन बी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी नंबर ऑफ स्पीकर्स, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी ड्यूरेशन ऑफ क्लास। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या बोला, व्हिच इज़ द बेस्ट मेथड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। द करेक्ट आंसर क्या होगा, प्री टेस्ट मतलब पहले टेस्ट करना है, उसके बाद क्या है पोस्ट टेस्ट मतलब बाद में भी पोस्ट टेस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर नर्सिंग सर्विसेज। ऑप्शन ए नंबर ऑफ विजिटर्स, ऑप्शन बी पेशेंट फॉल रेट, ऑप्शन सी हॉस्पिटल इलेक्ट्रिक बिल, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी पार्किंग कैपेसिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पेशेंट फॉल रेट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर नर्सिंग सर्विस। नर्सिंग सर्विस का जो मतलब कौन सा इंडिकेटर में दिखाया जाता है,
नंबर ऑफ विजिटर्स काउंट करने के लिए नहीं है। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करने के साथ इनका भी कोई लेना देना नहीं है। पार्किंग कैपेसिटी इनका भी नर्सिंग का कोई लेना देना नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज पेशेंट फॉल रेट। पेशेंट फॉल कितना हुआ इस परफॉर्मेंस में इंडिकेटर होता है नर्सिंग सर्विस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रीविएशन इस बार इज कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर। और एक बात है इसके बीच में मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल टेक योर टॉपिक। ओके, कुछ भी टॉपिक, कोई एग्जाम रिलेटेड, कोई टॉपिक रिलेटेड कुछ भी बोल सकते हो। ऑप्शन इज सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन। ऑप्शन बी सेफ्टी, बैलेंस, असेसमेंट एंड रिपोर्ट। ऑप्शन सी स्टेटस, बिहेवियर, एक्शन एंड रिस्पॉन्स। एंड फाइनल ऑप्शन इज डी सिस्टम, बैकग्राउंड, एडवाइस एंड रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या बोला, इस बार का कम्युनिकेशन का जो होता है उनका फुल फॉर्म क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिचुएशन, एस फॉर सिचुएशन, बी फॉर बैकग्राउंड, ए फॉर असेसमेंट एंड आर फॉर रिकमेंडेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए पेशेंट विथ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। मतलब ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा आइसोलेशन प्रीफर करता है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, एयरबॉर्न आइसोलेशन, ड्रॉपलेट आइसोलेशन एंड फाइनल ऑप्शन प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। ये मैंने बहुत बार लिया ये क्वेश्चन, हमेशा याद रखना ट्यूबरक्लोसिस के लिए एयरबॉर्न आइसोलेशन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी एयरबॉर्न आइसोलेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which quality improvement cycle is commonly used in hospital। ऑप्शन ए PDCA cycle, ऑप्शन बी Krebs cycle, ऑप्शन सी cardiac cycle and final option is D menstrual cycle। the correct answer is PDCA cycle। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा साइकिल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, हॉस्पिटल का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा साइकिल कॉमनली यूज़ होता है। कार्डियक साइकिल भी नहीं है, कार्डियक साइकिल हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, क्वालिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं है, ये वोमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कार्डियक साइकिल, कार्डियक मतलब हार्ट रिलेटेड है, कार्ब साइकिल भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज PDCA साइकिल, PDCA। ओके, सो P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। सो PDCA का जो फुल फॉर्म है प्लान, डू, एक्ट, चेक, एक्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए PDCA cycle। So next question, this is the last question for this video. Which of the following is the responsibility of a nursing superintendent during a fire emergency? Option A, leave the hospital immediately. Option B, coordinate patient evacuation and safety staff. And third option, lock all wards. And final option, stop all nursing care. The correct answer is ऑप्शन बी कोऑर्डिनेट पेशेंट इवैक्यूएशन एंड स्टाफ सेफ्टी। ओके, आज का जो वीडियो है यहाँ तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। ज़रूर सबको शेयर करो आपका फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड के साथ। ओके, अगर आपको दूसरा कुछ टॉपिक चाहिए यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। ओके, बाय, सी यू सून।